Okay, Rohan is here. Okay. Okay. So what according to the scriptures, no, and according to the analysis also, a mixture of mode of passion and ignorance. Okay. Yeah. Mode of passion and ignorance. When you all are young now, we all are young, we have more energy in our body, we have more क्या बोलते हैं कुछ कर दिखाने का जुनून है ना? So the mode of passion we are all in. So we have a lot of energy, just like a river is there, okay? बहुत तेजी से एकदम जाता है पूरा फ्लो के साथ. पर अगर वो उसको अगर उसके दिशा को अगर हम डायरेक्शन नहीं देंगे, then it will cause floods and everything. है ना? It will cause floods and it will cause all damage. Similarly, in the same way, अगर you have seen like regulator, if you don't regulate the regulator, then the cylinder can explode, है ना? इसी प्रकार हम लोग के पास बहुत एनर्जी है. आप तो आपके कॉलेज में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मेस पीजी में क्या होता है. एवरीबडी हैज लॉट ऑफ एनर्जी, घर से दूर है, माता पिता का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हम तो हमारे मन के मालिक है, हम मन मौजी है. अरे बेवकूफ, तुम मन मौजी, तुम मन के गुलाम हो. तुम्हें मन बोल रहा है तुम चीटिंग करो, ये करो, स्मोकिंग करो, दारू पियो, लड़कियों के पीछे भागो, और तुम वही कर रहे हो. That is the biggest defect of mode of passion in students. They feel that they can do anything, they have energy and everything, but they direct the energy in the wrong direction, है ना? So why does this thing happen? Why our energy is directed to the wrong direction? क्यों ऐसा होता है? हम लोग सब जब आते हैं कॉलेज में, हमारे घर से एक उम्मीद लेके आते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, पढ़ाई करना है, हमें जॉब लेना है, वी हैव टू टेक वेरी गुड जॉब्स अराउंड लाइक 10 लाख पैकेज, 12 लाख पैकेज का जॉब मुझे निकालना है. वो उम्मीद से आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सब लोग. बट देन व्हाट हैपेंस टू अस? व्हाई डू वी बिकम लेजी? व्हाई डू वी गो इनटू बैड हैबिट्स? मैक्सिमम स्टूडेंट्स, क्यों ऐसे होता है? Association, brother. Association. ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर. एसोसिएशन, या ये संगत वैसा है, इसीलिए ऐसे हो रहा है. पर संगत ऐसा क्यों है? कॉलेज के आसपास का संगत, जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास का जो संगत है, ऐसा क्यों है? यस, सुमन, संगत इतना गंदा क्यों है? uh, because we don't follow the actual knowledge, the spiritual knowledge, or we don't read the actual spiritual scriptures or something. ओके, यस, दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि हम लोग भूल गए हैं ऑल दिस थिंग्स. या, बट द मेन रीजन इज दैट देर इज, लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, like there is a gravitational constant 9.8 meter per second square. This gravitational constant is constantly pulling you down towards the earth, है ना? That's why earth गोल होने के बाद भी आप कहीं पर भी खड़े रहिए, you will be sticking to the earth. Similarly, in the age of Kali Yuga, there is a negative gravitational constant which is directly pulling you down towards negative activities. You see, if you go on road, your eyes go to the wrong direction only, always. Always मन में कहीं ना कहीं negative thought आते ही रहेगा, है ना? All those things are happening. What happened? Asking to join. Rohan is not in the class. I'll just write. Just 1 minute, huh? Yeah. So because of this age of Kali Yuga, which is the age of hypocrisy, age of negativity, age of all the false and wrong things, that's why we have been attracted to the wrong activities. And over that, हमको घर में से कभी भी spiritual education मिला नहीं है. Our parents have not taught us to read भागवत गीता, है ना? भागवत गीता पढ़ने के लिए हमें हमारे पेरेंट्स ने बोला नहीं है. और उसके अलावा इवन आवर what you say schools colleges में सिखाया गया नहीं है. So because of all these things, naturally association, lack of education in spirituality and our Vedas, our own culture, we are directly going towards the wrong direction, है ना? So now when a boy comes to college and he has gone to the wrong direction, is in a mode of passion, the only thing is that the mode of goodness which can save him. मोड ऑफ गुडनेस इज लाइक रिवर में बहुत फ्लो हो रहा है, फ्लड आ रहा है, दबा कर रहा है, गांव को बहा के ले जा रहा है. आप बस वहां पर एक डैम बना दीजिए, उसके फ्लो को रेगुलेट कर दीजिए, एंड हाउ मच बेनिफिशियल इट विल बी, है ना? सो दैट कम्स बाय मोड ऑफ गुडनेस. इसीलिए मैंने पहले भी सेशन में बोला था, इसीलिए पहले के युगों में जो राजा थे उनको बोलते थे राज ऋषि. मीन्स राजा
who is being guided by Rishi, Raj Rishi. So king is in mode of passion. He has to, he's Kshatriya, उसको fight करना है, उसको rule करना है. He should in mode of passion. But that passion is guided and regulated by goodness, by ऋषि. जैसे कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना? उनको गाइड किया चाणक्य ने. And how well guided, how the energy focus होके एकदम direction में गया, and how he expanded so nicely, है ना? So this is what needs to be, that is what voice is actually giving to all the students. Mode of passion में no problem in mode of passion, but take guidance, a good guidance, and then you will also become a Raj Rishi, successful in your life. Okay, so that was the discussion of our last session, three modes. I just gave a brief. Now today's session I will tell you one very wonderful story. Okay, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव ओपन डॉक्यूमेंट जो मैं सेंड किया था, और जिनके पास सेल्फ मैनेजर बुक है उनके पास तो ऑलरेडी है ही. तो सेल्फ मैनेजर बुक में से हम लोग एक कहानी सुनेंगे आज. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सेज एक्सपीडिशन इन सर्च ऑफ सुप्रीम. पहले कभी नहीं, पहले कभी किसी ने कहानी सुनी है भृगु मुनि के बारे में? यस, एनीवन? हैव यू हर्ड? Yeah, bro. Okay, Yes, Prabhu. Suman has already heard. Nitish has heard. Okay, so this is the story today. This is the what you say, उनका क्या बोलते हैं, एक्सपीडिशन का कहानी है. तो एक बार क्या हुआ था कि जितने भी ऋषि मुनि लोग थे ना, तो जैसे वो लोग सब एक गैदरिंग में आ गए. ओके, सरस्वती नदी के तट पे वो सब लोग वहां पर आ गए, एंड वहां पर उन्होंने यज्ञ किया. यज्ञ का नाम था सत्रा यज्ञ. ओके, तो सब लोगों ने यज्ञ किया, एंड यज्ञ करके डिस्कशन कर रहे थे, स्पिरिचुअल डिस्कशन, जनरली वेदों शास्त्रों से डिस्कशन करते हैं. तो डिस्कशन में फिर रिजल्ट में लास्ट में उन्होंने क्या सोचा कि देखिए हमारा जो पूरा मेटेरियल यूनिवर्स है ना, मेटेरियल यूनिवर्स क्रिएशन तीन लोग कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश. ओके, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड महेश, यानी कि शिव जी. ओके, ये तीनों पूरा चीज को कंट्रोल करते हैं. सन बराबर टाइम पे आता है कि नहीं? कभी ऐसे हुआ कि सन लेट हो गया सुबह? नहीं ना. तो सब कौन कंट्रोल करता है? सन शुड बी कमिंग ऑन टाइम, सेटिंग टाइम पे होना चाहिए. अर्थ शुड मूव वेरी नाइसली अकॉर्डिंग टू दैट एंगल, वो टाइम पे रोटेट होना चाहिए अर्थ. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दीज थ्री डीटीज. ओके, ये तीन जो है डीटीज है, ये सब कुछ करते हैं. पर इन तीनों में से सबसे मेन कौन है? ओके, हु इज द मोस्ट प्रीडोमिनेटिंग अमंगस्ट ऑल दीज थ्री डीटीज हमारे पूरे ब्रह्मांड में? तो ये उनका डिस्कशन था. ओके, जैसे मेरे पिताजी है, ही इज अ साइंटिस्ट. ओके, so he goes to all these international conferences and all. He goes to different countries where all different scientists and all scientists and different researchers, they all come and they discuss their thesis कि okay, एक साल में आपने क्या क्या डिस्कवर किया है, उसमें आपने क्या क्या रिसर्च किया है. They discuss all those things. Okay, so similarly this, that is a materialistic thing, but this is a spiritual thing discussing from scriptures. So अभी अभी क्वेश्चन आता है कि सब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? हु इज द मोस्ट प्रीडोमिनेटिंग? बहुत लोग इसके बारे में कंफ्यूजन होता है. तो फिर उन्होंने क्या किया, भृगु मुनि, ओके, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, है ना, उनको उन्होंने अपॉइंट किया और उनको बोला कि ठीक है, तो आप पे जाके टेस्ट लीजिएगा कि कौन है जो तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट है. ओके, तो ये हमारा आज स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है. तो अभी आपके पास है 2 मिनट, आपका क्वेश्चंस का टाइम स्टार्ट होता है अब. 2 मिनट है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 41 पे है. 2 मिनट समय लीजिएगा. दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च कीजिए क्विकली, एंड आई विल आस्क यू द आंसर्स. यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ. Question number 1 and question number 2. What was the job assigned to Bhrigu Muni by the sages? ये first question है. और second question है, what is Bhrigu's relation with Brahma? Yes. तो वो एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका Wait, आंसर wait, wait, होगा wait. Don't say एक्चुअली the answer ब्रह्माज now. Don't say the answer. Oh, Let the time finish. Let 2 minutes happen, and then I will tell the person who should answer, or else you can raise your hand and then you can answer. Okay. Yes, 30 seconds remaining. Quickly.
Question number 1 and question number 2, page number 41. Okay. Yes, time up. Yeah, question number 1 है, what was the job assigned to Brigu by the sages? उनको क्या job assign किया गया? You can raise your hands. You can answer. Yes, Ashish raised first quickly. Yes, unmute and answer, Ashish. Prabhu, he was deputed to test all three predominating deities and report to the assembly as to who is the greatest. Okay, yes, greatest उनको report करना था. ठीक है. Second question, what is Brigu's relationship with Lord Brahma? Nitish, yes. Oh, can tell. मतलब सन का रिलेशन था प्रभु. उनके बेटे थे. Okay. ये Yeah, हाँ very हाँ. nice. Okay. The son of Lord Brahma was deputed to the test all three predominating deities and report to the assembly as to who is the greatest. Okay, very nice. Yes. So now ये हो गया. अभी हम लोग चलते पार्ट 2 के जगह पे. ओके, तो पार्ट 2 में क्या हुआ फिर उसके बाद भृगु मुनि वहां से चले गए. भृगु मुनि चले गए और सबसे पहले कि अरे मेरे पिता तो ब्रह्मा जी है. सबसे पहले उनसे स्टार्ट करते हैं ब्रह्मा से. तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द होल मटेरियल यूनिवर्स. ही इज अ इंजीनियर. यू ऑल आर इंजीनियर्स. सिविल इंजीनियर. ही इज द इंजीनियर ऑफ द होल यूनिवर्स. सो ही वेंट देयर एंड उन्होंने अपने पिता को देखा, भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी को. और जनरली हम जब हमारे एल्डर्स को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, पिता को, तो हम लोग क्या प्रणाम करते हैं या फिर पैर छूते हैं, है ना, या फिर दंडवत प्रणाम करते हैं. बट उन्होंने कुछ किया नहीं, बस वहां पर गए एंड इट जस्ट डिड नॉट डू एनीथिंग. एंड देन लॉर्ड ब्रह्मा ने देखा कि इन्होंने तो मुझे प्रणाम किया नहीं, कुछ किया नहीं, ऐसे ही वहां पर खड़े हैं, ऐसे मुंह वहां पर खड़े हैं. तो उनको गुस्सा आ गया. पर क्या करे, बेटा ही है मेरा, कैसे श्राप दे उसको. अरे गुस्से को उन्होंने कंट्रोल कर लिया. तो पर भृगु मुनि को बात समझ में आ गई. ओके, कि मेरे पिता मेरे से गुस्सा हो गए. हाँ, तो ये उनका क्या बोलते हैं मेन टेस्ट था. अपने पिताजी का टेस्ट ले रहे थे कि पिताजी कैसे बिहेव करते हैं जब मैं उनको कुछ प्रोवोकिंग सिचुएशन में डाल देता हूँ. ओके, तो वो वहां से फिर ब्रह्मा ने अपना एंगर कंट्रोल किया और भृगु मुनि को उनका आंसर मिल गया और वहां से वो फिर चल गए. तो फिर से अभी आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं. 3 मिनट समय आपको दूंगा अभी मैं. ओके, 3 minutes quickly. See the 3 answers. It is just like what will happen in an interview after 2 to 3 years. जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे. 1 minute, 1 question in the from the passage. Okay, quickly. Yes, Rohan, even you can quickly search. 3 minutes time, 3 questions. Very important questions. तीन क्वेश्चन है आपके सामने. हाउ डिड भृगु टेस्ट लॉर्ड ब्रह्मा? What is the duty of a son or a disciple? How did Brahma respond to Bhrigu's behavior? Who all got the answers? You can raise your hands. Okay, Suman got the answer. Anupam got the answer. Okay. Nitish also got all the answers. Okay, Ashish brother also got all the answers. Okay. Yeah. So, pehla question.
या तो इसमें उन्होंने उनका मेन फोकस क्या था भृगु मुनि का, कि जब वो जा रहे हैं और जाके जब वो टेस्ट करते, टेस्ट का मेन पर्पस क्या था कि मोड ऑफ गुडनेस में कौन है। ओके, मोड ऑफ गुडनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड। मोड ऑफ इग्नोरेंस सबसे नीचे है, उसके ऊपर है मोड ऑफ पैशन, उसके ऊपर है मोड ऑफ गुडनेस। तो मोड ऑफ गुडनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड। जब तक आप मोड ऑफ गुडनेस में नहीं आएंगे ना, तब तक आप इस भौतिक जगत से आप जा नहीं पाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इवन बियॉन्ड मोड ऑफ गुडनेस, शुद्ध सत्व इसे बोलते हैं, प्योर गुडनेस। ठीक है, तो दिस वाज हिज टेस्ट, द प्रीडोमिनेंट डीटी इन मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, सो हाउ डिड भृगु टेस्ट ब्रह्मा? पहला क्वेश्चन कौन आंसर देना चाहेंगे? रेज योर हैंड्स क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन, यस अनुपम। ओके, आपने पहले हाथ उठाया, बोलिए। So, Bhrigu, despite being the son, he purposely did not offer his respects to his father, either by offering obeisances or by offering prayers. यस, So that way he tested his father. करेक्ट, इन दिस वे ही हैज टेस्टेड हिज फादर। ओके, आजकल के ज़माने में अगर हम लोग जाके हमारे माता पिता को प्रणाम नहीं करते, पैर नहीं छूते, तो फिर भी वो लोग कुछ बोलते नहीं है, राइट? वो कल्चर ही चला गया देखो हमारे देश से। दिस व्हाट इज हैपनिंग, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिशर्स स्टिल नाउ। बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स हो गए, पर वी आर स्टिल डिपेंडेंट। ठीक है, यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ सन और अ डिसाइपल? यस सुमन, you can unmute and speak, yeah. Yeah. It is the duty of a son or a disciple to offer respects and recite suitable prayers when he approaches his father or spiritual master. Correct, this is very important। हमें प्रणाम करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड द सेम वे यू नो, ये तो एक बेटे का क्या बोलते हैं, डिसाइपल का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, पर एक पिता या फिर एक गुरु का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि यू कैन नॉट बिकम अ फादर इफ यू कांट सेव योर सन फ्रॉम birth, old age, disease and death, the four problems of the life, है ना? These are the four problems of life which is common to all the living entities: birth, old age, disease and death। अगर आप आपके बेटे को इन चार प्रॉब्लम से बचा नहीं पाएंगे, तो आपका पिता बनना का कोई फायदा है नहीं। समझ रहे? उसी प्रकार अगर आप एक गुरु है, आप गुरु नहीं बन सकते अगर आप आपके शिष्य को इन चार प्रॉब्लम से बचा नहीं पाएंगे। उसका मीनिंग क्या है कि you have to follow the rules regulation of scriptures and become pure, okay, and only then you can beget children and you can beget disciples, otherwise you are actually taking them to hell, and because of you, that poor soul who has come to this material world, because of you, that soul is going to hell। So that is what the whole situation, whole scenario of today's world is doing, right? hell की तरफ ही भागते जा रहे हैं सब लोग, without any discrimination, just they want to run towards hell because there is no education only। Okay, coming to the third question now, how did Brahma respond to Bhrigu's behavior? Third question, yes, Nitish, you can say। Prabhu, Lord Brahma was very angry at his son impudence and was even prepared to condemn Bhrigu by crushing him, and but because Bhrigu was his son, and Lord Brahma controlled his anger. कंट्रोल कर लिया गुस्से को, है ना? इसके बारे में बात Okay. करेंगे हम लोग आगे, कैसे गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम आगे जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। अभी भृगु को पता चला कि मेरे मेरे पिता जो है वो अपना गुस्सा कर गए, मतलब वो तो प्रीडोमिनेंट डिटी नहीं है गुडनेस के, इज नॉट इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है, तो मेरे पिताजी फेल हो गए। बस उसको उसका आंसर मिल गया। अभी सेकेंडली वो गए फिर अपने भाई के तरफ, लॉर्ड शिवा उनके भाई हैं, ब्रह्मा जी से ही लॉर्ड शिवा भी आए हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी से जब शिव जी ने देखा कि भृगु मुनि आए हैं मेरे भाई, तो खड़े हो गए, अरे मेरे भाई आइए गले मिलते हैं। गले मिलने के लिए आए, और देन भृगु मुनि, नहीं मैं तुमसे गले नहीं मिलूंगा, तुम्हारे गले में एक क्या बोलते हैं मरा हुआ सांप है, बॉडी पूरा एशेस है, ऐश राख पूरा स्प्रिंकल किया है बॉडी के ऊपर,
तुम वही वही कपड़े पहनते हो इतने दिनों से, ये वो करके उनको इंसल्ट किया। इंसल्ट जैसे किया, उनको इतना गुस्सा आ गया, उनके आंख लाल हो गए। अपना त्रिशूल लेके he just ran behind Lord शिवा ran behind भृगुमुनि, और भृगुमुनि अपना प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गए। इट वाज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ पार्वती देवी कि वो वहां से उनका गुस्सा उन्होंने काबू किया एंड ही वाज एबल टू एस्केप, अदरवाइज ही वुड हैव बीन किल्ड दैट डे। ओके, तो ये इतना गुस्सा था लॉर्ड शिवा का। ओके, तो अभी तीसरा पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस किया है राधेश्याम प्रभु ने कि डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड सिन। ओके, एक अपराध और एक पाप, इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, आप लोग सुनिएगा, जब आपको समय दूंगा तभी आप लोग आंसर देखिएगा। ओके, हमारा क्लास का उद्देश्य आंसर फाइंड आउट करना नहीं है, हमें समझना है कि हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, सो पाप और अपराध मीन्स ऑफेंस, सिन एंड ऑफेंस में डिफरेंस क्या है? सिन मीन्स व्हाट? यू आर जनरली नथिंग बट ब्रेकिंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। You are killing innocent animals or creatures for your own enjoyment. You are doing gambling, जुआ खेल रहे, even gaming comes in gambling. There I was a game addict long back. Okay, in my college days, I asked one Maharaj that, okay, I'm not doing anything, but I'm playing games. Clash of Clans, Counter Strike, all these things I used to play a lot. So Maharaj says then you are breaking a regulatory principle because gaming comes into addiction. Games are designed in such a way that you have to again come back to play that game. It is addictive. समझ रहे? So PUBG and all those are addictive. It means you are breaking regulatory principle. Remember that. Then comes intoxication, smoking karna, and whatever intoxicates you. Caffeine, it is also intoxicant. Nicotine, tobacco, all those things are intoxicants. And then illicit sex, sex before marriage, or when you are married, then still you are having sex outside marriage. So these things are called as sin. पाप इसे बोलते हैं। पर अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे ना सिंसियरली, इन गाइडेंस ऑफ प्योर डिवोटी, ओके, देन आप इस पाप से इजीली आप मुक्त हो जाएंगे, ये पाप आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। समझ रहे? यू कैन ओवरकम दिस सिंस इफ यू chant Hare Krishna mantra very sincerely and you follow four regulative principles. But aparad, any offense, it is more dangerous than sin. Offense means क्या? Some pure devotee or a Vaishnava is there. You are offending him by either lying to him, उनसे झूठ बोल के, या किसी तरह के चीट करके, या उनको दुख पहुंचा के, by like this different insult करके, by this thing is called offense. And when you offend, then Krishna becomes very angry. Okay, then whatever whatever happens, he will not even look at you because your offended is devotee. समझ रहे? So offense is more dangerous, so we should be very careful about offense. ठीक है? Now yes, coming to this question number 6, 7 and 8, again you have time, 3 minutes time quickly. Who have already defined the answers of these three questions? Okay, Anupam has found. Okay, so others quickly, 3 minutes time. उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को ऑफेंड किया, फिर उसके बाद अपने भाई शिवा को ऑफेंड किया। अब इसमें आपका 3 important क्वेश्चंस हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंसेस डिड भृगु मुनि कमिट विद लॉर्ड शिवा? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेटेड लॉर्ड शिवाज एंगर? विच क्वालिटी ऑफ शिवा इवोक्ड हिज एंगर? एंड देन हाउ वाज भृगु मुनिज लाइफ स्पेयर्ड? कैसे वो बचे? बहुत सिंपल है। यस, रेडी? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस डिड भृगु कमिट
with Lord Shiva. Yes. Okay, Suman. Actually, when Bhrigumani comes to Lord Shiva, then actually then Lord Shiva want to embrace with Bhrigumani. Then Bhrigumani actually refused to embrace with him, the Lord Shiva, and told the Lord Shiva that you smear your body with ashes, and you are not very clean. Please do not touch me. So when Bhrigumani refused to embrace his brother and saying Lord Shiva, it's impure, you are impure. The latter became Lord Shiva very angry to Bhrigumuni actually. ऑफेंस का नाम क्या है? What type of offense did Bhrigu Muni commit to Lord Shiva? उसी में आंसर देखो, आंसर सब टेक्स्ट में ही है. Second. Second. ऑफेंस का नाम क्या है? फर्स्ट ऑफेंस क्या था जो उन्होंने ब्रह्मा जी को किया था? First offense, do not greet him actually or do not respect. Yeah, that is there. Yes, yeah. Anupam, you can say. Offense with the mind, and Correct. second offense with the speech. Correct. Offense by speech. तो ब्रह्मा जी को जो उन्होंने अपराध किया था ना, that was offense with the mind. उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बस प्रणाम नहीं किया और mentally disrespected mentally, and action speaks greater than words. So ब्रह्मा जी को भी समझ गया that was offense by the mind. Second was offense by speech. It is more graver offense. उन्होंने बोल के उनको insult किया सीधा सीधा मुंह के सामने. ओके यहीं पर लिखा है देखिए सेकंड ऑफेंस कमिटेड टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा बाय इंसल्टिंग हिम क्रिटिसाइजिंग हिम ऑफ हिज अनक्लीन हैबिट्स वाज एन ऑफेंस बाय स्पीच. ठीक है, इट इज मोर डेंजरस ऑफेंस बाय स्पीच. ओके देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनसाइटेड लॉर्ड शिवा's एंगर? व्हिच क्वालिटी ऑफ शिवा इवोक्ड एंगर? यस, who want to speak the answer? क्वेश्चन नंबर 7. सब आंसर इसी पैसेज के अंदर है, जो पार्ट्स है ना वो की पार्ट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा. Yes, others can raise your hands. Okay, Anupam's hand I can see. Yeah, Anupam. What inside Lord Shiva means when when Bhrigu Muni refused to embrace, then Shiva became angry with him. The latter Which became one very angry. question though? I was actually disconnected. Okay, या क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चल रहा है अभी. हाँ आशीष. And which quality in Shiva evoked anger? That is his quality of ignorance is prominent in Lord Shiva. So he immediately became red with anger. Correct. Very nice. Yeah. Then last question number 8. How was Bhrigu Muni's life spared? कैसे बचे थे वो? Yes, नीतीश. अनम्यूट करके बोलिए. बोल रहा है bro. At that time, Lord Shiva, wife Parvati was present. She fell down at the feet of her husband, and with her sweet words, she talked him out of killing Bhrigu Muni. करेक्ट. अपने मीठे मीठे बातों से उन्होंने अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लिया नहीं मारने के लिए. ओके ठीक है. सो नाउ देन भृगु मुनि समझ गए कि ये भी फेल हो गए. अभी एक ही बच्चे लॉर्ड विष्णु, उनके पास गए तो लॉर्ड विष्णु जो है वो क्षीर समुद्र में वहां पर क्वेश्चन आप म्यूट कर सकते फिर से. वो क्षीर समुद्र में वहां पर वो प्रभु क्वेश्चन बताइए. क्या नॉट श्योर. ओके ठीक है. तो वहां पर लॉर्ड विष्णु वहां पर विश्राम कर रहे थे एंड देन भृगु मुनि यहाँ पर गए और सीधा सीधा कुछ नहीं किया, बस जाके विष्णु भगवान के छाती पे लात मार दिया, जोर से छाती पे लात मार दिया. एंड दैट्स ऑल. मदर लक्ष्मी गॉट सो मच एंग्री, कैसे मेरे हस्बैंड को आपने लात मार दिया. बट लॉर्ड विष्णु जब उन्होंने देखा, वो योग निद्रा में थे, राइट, ही इज इन योग निद्रा ऑलवेज. सो उन्होंने उठा और उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने क्या बोलते हैं उसको एज ए इंसल्ट नहीं लेके उन्होंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने उनको एक्सक्यूज किया बिकॉज ऑफ ब्राह्मण. अगर कभी कोई ब्राह्मण कोई गलती करते हैं तो भी उनको एक्सक्यूज किया जाता है. ओके that is what the scriptures say, but not a bogus brahman, authentic brahman. ठीक है. तो this was what the incident. तो लॉर्ड विष्णु गुस्सा हुए नहीं, उन्होंने उनको एक्सक्यूज कर दिया. बट मदर लक्ष्मी she got angry with लॉर्ड
with भृगु मुनि. ओके, तो यहाँ पर आता है आपका थर्ड पार्ट. इसका फिर से 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट. क्विकली रीड द पैसेज. ओके, एंड आंसर दी क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11. तो श्वेता द्वीप पे चले गए थे भृगु मुनि, और वहां पर वो जब देखे कि लक्ष्मी जी मसाज कर रही हैं भगवान के चरणों को, वो देखने के बावजूद वो जाके सीधा सीधा के लात मार दिया विष्णु भगवान के छाती पे, एंड इस प्रकार उन्होंने ऑफेंस किया. यस, रेडी? आशीष, नीतीश, सुमन. Yeah, Prabhu. Ready. ओके, आशीष एंड नीतीश. You would actually have less time than this in interviews, to do pass the English test. राहुल प्रभु को ऐसा ही टेस्ट था कॉग्निजेंट में, सिलेक्शन के जस्ट पहले. दे गिव एन इंग्लिश टेस्ट दिस टाइम. Okay, so first question number 9. How did Brigu offend Lord Vishnu? What is the nature of the offense? Okay, इसमें 3 क्वेश्चन है. ओके, पहले उन्होंने कैसे उनको ऑफेंड किया, ऑफेंस का नेचर क्या था, और which among the 3 offense committed by Brigu was most severe. यानी कि जो 3 अपराध उन्होंने किया ब्रह्मा जी को, शिव जी को और विष्णु जी को, तो उसमें से सबसे सीवियर ऑफेंस कौन सा था? यस, कैन रेज योर हैंड्स. यस, सुमन. फर्स्ट वन, हाउ डिड Brigu offend Lord Vishnu? कैसे ऑफेंड किया उन्होंने? Actually, when Bhrigu Muni went to meet with Lord Vishnu, then Lord Vishnu was lying on a bed of flowers, accompanied by his wife Lakshmi ji. There, Bhrigu Muni actually prosperously committed the greatest sin by offending Lord Vishnu by his bodily activities. The first offense committed by Bhrigu Muni was mental, and the second offense was vocal, and the third offense was bodily and corporal. And the offense was actually he kicked in the chest of Lord Vishnu. And what was the nature of the offense? Actually, an offense committed within the mind is a positive offense. The same offense committed verbally is comparatively graver, and when committed by bodily action is superlative offensive. So Bhrigu Muni actually committed the greatest offense by kicking the chest of the Lord with his foot in the presence of his good goddess of fortune. Correct. So which among 3 offensive committed by Bhrigu was the most severe?
The last one, the kicking of the kicking in the chest of Lord Vishnu. ओके, थैंक यू सुमन, वेरी नाइस आंसर. सो कलयुग में ना, कलयुग में हमारा जो माइंड है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. ओके, इट इज अवर ग्रेटेस्ट एनिमी. ओके, ऑल द टाइम. अगर आपको कोई सोचता है कि ठीक है, पहले जो युग थे उस युगों में तो लोग हिमालय में जाके जंगल में जाके तपस्या करते थे. आशीष और नीतीश, आपका आपका वीडियो बंद है, कैन प्लीज कम ऑन वीडियो, आशीष एंड नीतीश. सो लोग सोचते थे कि हम लोग जंगल में जाके तपस्या करें कहीं पहाड़ों में जाके. पहले युग में लोग कर पाते थे बिकॉज देयर माइंड वाज नॉट सो इम्प्योर. बट कलयुग में माइंड इतना इम्प्योर हो चुका है कि अगर आप, क्या बोलते हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए, घर बार गाड़ी बंगला, माता पिता फैमिली कंपनी, सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर आप जंगल में जाएंगे, अगर हिमालय में जाएंगे या कहीं पहाड़ों में जाके भी आप तपस्या करेंगे, फिर भी आपका माइंड आपको छोड़ेगा नहीं. तो कुछ ना कुछ गंदी थॉट्स आपके माइंड में मतलब आते ही रहेंगे. यू कांट एस्केप योर माइंड. ओके, इसीलिए कलयुग में मेन चीज क्या है कि इन द एसोसिएशन, अच्छे लोगों के संग में, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहने से आपका माइंड आप पे कंट्रोल में आ सकता है. और जब माइंड में जब गंदे थॉट्स आते हैं ना, if we got a wrong thought in our mind, okay, हम लोग या हमारे हम लोग वॉइस में रह रहे, सब लोग एक साथ रह रहे, किसी के प्रति गंदा थॉट आया, ओके, इसने ऐसे किया, ईर्ष्या का थॉट आया, गुस्सा का थॉट आया, अरे हम दोनों एक ही साथ, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल गया CA4 में, मुझे कम मार्क्स मिल गया, गुस्सा आ गया, थोड़ा ईर्ष्या हो रही है, तो माइंड में है, आपने उसको बोला नहीं, या फिर आपने उसको, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं किया, राइट. सो इन कलयुग आनो, इवन अगर माइंड में भी आपने कुछ गलत विचार किया तो उसका आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो कि पहले के युगों में नहीं था. पहले के युगों में अगर आप इवन गंदा सोचते भी थे किसी की तरफ, किसी के बारे में, तो अब यू विल गेट द ऑफेंस ऑफ दैट. बट इन कलयुग इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आप गंदा सोचेंगे भी, सोचना नहीं चाहिए, बट बाय मिस्टेक व्हेन थॉट कम्स, रॉन्ग थॉट, बट स्टिल यू विल नॉट गेट द बैड रिजल्ट, और इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑफेंस. बट उसी प्रकार उसका ऑपोजिट, अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं, अगर आपने सोचा कि अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई एम अ पुअर स्टूडेंट ना, उतना तो मेरा तो कुछ है नहीं, बट आपने मन में सोचा कि मैंने भगवान को अच्छे से सजाया है, भगवान को मैं अच्छे से मतलब ऑफरिंग दे रहा हूँ, मैं भगवान का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, अगर मन में आपने अच्छा सोचा भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा. दिस इज दी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कलयुग. यू थिंक पॉजिटिव इन योर माइंड, you will get the result of that. You think negative in your mind, you will not get the result of that. But it doesn't mean that you should think negative in your mind. Okay. So this is what we can learn from this. Okay. Now question number 10. How did Lord Vishnu respond to Brigu? What did he respond in that manner? Yes. Who wants to answer? Ashish, you have not answered anything till now. Yes. Question number 10 का answer कीजिए आप. Lord Vishnu immediately got up from his bed and offered respectful obeisances to the Brahmana. He addressed Bhrigu Muni as follows: My dear Brahmana, it is my greatest fortune that you have come here. Please therefore sit down on this cushion for a few minutes. My dear Brahmana, I am very sorry that when नहीं नहीं, you आप first entered क्वेश्चन my नंबर home, I 10, could not receive you properly. नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो इस सेक्शन में रहेगा. आप नीचे के सेक्शन से आंसर ढूंढ रहे हैं. ऊपर वाले में था नहीं प्रभु कुछ इससे रिलेटेड, इसीलिए मैं नीचे इसमें है आंसर. यस, अनुपम. नीचे डायरेक्ट मिल गया. So, Lord Vishnu, how did he respond? Yes, he did not become angry at the activities of Bhrigu Muni, for Bhrigu Muni was a great Brahmana. And why did he respond in that manner? Because two parties there. One is Lord Vishnu is all merciful, and second part is that a Brahmana is to be excused even if he sometimes commits an offense, and Lord Vishnu sets the example. So परफेक्ट, yes. थैंक यू. क्या आशीष, कैसे होगा आपका इंटरव्यू में? अभी से आपको इतना सिंपल नहीं मिल रहा है तो आंसर्स, हाँ, तो सिंपल आंसर. ओके, सो दैट इज द थिंग. लॉर्ड विष्णु ने उनको एक्सक्यूज कर दिया बिकॉज ही वाज अ ब्राह्मण, और वो गुस्सा नहीं हुए, एंड ही सेट अ एग्जांपल. ओके, ना थर्ड क्वेश्चन. व्हाई आर द ब्राह्मणास गेटिंग जनरली पुअर? यस, नीतीश. यस.
Prabhu, it is said that from the time of this incident, the goddess of fortune favorably disposed the Brahmanas for the fortune and withhold from us are very हो गया प्रभु. ओके या सो भगवान तो गुस्सा नहीं हुए पर लक्ष्मी देवी को बहुत गुस्सा आ गया इसके तब से देखिए ब्राह्मण लोग को जनरली भिक्षा मांग के जीना पड़ता है ना बिकॉज ऑफ दिस रीजन लक्ष्मी देवी गुस्सा हो गई कि आपने मेरे हस्बैंड को छाती पे लात मार दिया हाँ करके ओके या देन आफ्टर आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड फिर जैसे विष्णु यस भगवान ने देखा प्रभु एक क्वेश्चन है क्वेश्चन चलते करते लास्ट ओके जैसे और उन्होंने विष्णु भगवान को देखा कि यस विष्णु भगवान देखा उन्होंने लात मारा इमीडिएटली वो उठ गए उठ के उन्होंने भृगु मुनि को उन्होंने एक अच्छे से सॉफ्ट जगह पे बिठाया उनको फिर माफी मांगा कि मुझे माफ कीजिए मैं आपको रिसीव नहीं कर पाया जब आप आए थे फिर उन्होंने बोला कि देखिए आप तो ऋषि मुनि आप यहाँ पर आए हैं आपके पैरों से अगर पानी भी छुआ तो पानी पवित्र हो जाता है तो कृपया आप हमारे वैकुंठ धाम को आप पवित्र कीजिएगा इस जगह को और फिर उन्होंने क्या बोलते हैं भृगु मुनि को अ, उनके माफी मांगा कि मेरा छाती तो पत्थर के जैसा है आपके कोमल चरणों को क्या बोलते दिक्कत हुआ होगा इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए तो इन हम्बल वे लॉर्ड विष्णु डेल्ट विथ भृगु मुनि एंड देन ये इसमें है और सेकंड उसके बाद है कि लक्ष्मी देवी को चंचल क्यों बोला जाता है वो चंचल होती है बिकॉज उनका नेचर है टू जस्ट स्टे एट लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु तो जहां पर विष्णु होंगे लक्ष्मी देवी वहीं पर रहेंगी अदरवाइज उनका नेचर है कि वो चंचल रहेगी वन प्लेस टू अनदर शी विल गो ऑन कीपिंग ओके एंड देन जब भृगु मुनि ने देखा कि भगवान ने इतना अच्छे से मेरे साथ व्यवहार किया सो उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने भगवान के छाती पे लात मार दिया इतना मैंने गलत काम कर दिया एंड वो रोने लगे वहां पर ठीक है तो अभी आपका समय स्टार्ट होता है नेक्स्ट 3 minutes फॉर यू हैव 4 questions नाउ so very carefully find the answers first question write 3 point wise a point wise response of Lord Vishnu when Brigu kicked the Lord with his chest okay the second what is the nature of goddess of fortune Lakshmi and why she is called Chanchala in the material world and what she is called in Vaikuntha में उन्हें क्या बोलते हैं and then third question what did Lord Vishnu say about Brigu Muni kicking his chest in connection with Chanchala and after the divine speech of Lord Vishnu what happened to Brigu Muni ये आपका लास्ट क्वेश्चन ठीक है क्विकली 3 मिनट है आपके पास आप वीडियो पे आ सकते हैं so that I can be more interactive and you can find the answers I will end in 5 minutes so quickly if you can answer it will be very nice it's very important section actually yes ready
Yes, 1 minute remaining. अनुपम, सुमन, आशीष एंड नीतीश, 1 मिनट समय बाकी है. फटाफट आंसर निकालिए ढूंढ के. Okay, I think you all are ready. Yes. So पहला क्वेश्चन जाता है 1 करोड़ रुपयों के लिए. Write 3 points wise responses of Lord Vishnu when Brigu kicked the Lord with his chest, on his chest. Yes, कौन देना चाहेंगे? हाथ उठाइए जल्दी. ओके, आशीष. ठीक है, बोलिए आशीष. Prabhu, first point is he addressed Bhigu Muni. First, he addressed Bhigu Muni that, my dear Brahmana, it is my greatest fortune that you have come here. Please, therefore, sit down on this cushion for a few minutes. My dear Brahmana, I am very sorry that when you first entered my home, I could not receive you properly. And second point is, uh, my dear great sage, I know that your feet are very soft like a lotus flower, and that my chest is as hard as thunderbolt. I am therefore afraid that you may have felt some pain by kicking my chest with your feet. And the third is, he addressed Bhigu Muni as, my dear Lord, he said, my chest has now become sanctified because of the touch of your feet. And I am now assured that the goddess of fortune, Lakshmi, will be very glad to live there perpetually. ओके, थर्ड का एक और था कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हाँ ब्रो, एक और. you are so pure that the Vaikuntha. water which washes your lotus feet can purify the places of pilgrimage. Therefore, I request to purify the Vaikuntha planet where I live with my associates. Okay, almost correct. Yes, thank you, Ashish. Second question, number 13. What is the nature of goddess of fortune? Lakshmi is called as Chanchala in the material world and Vaikuntha. Yes, हाथ उठाइए जल्दी, quickly. हाथ उठाइए. I can't see your hands. Okay, Anupam, I saw. Yes, quickly. Yes, the nature of goddess of fortune is Chanchala. That indicates that she does not stay in one place for long time. Okay. Then वैकुंठ में क्या बोलते हैं? Whereas in Vaikuntha planet, she eternally lives at the lotus feet of the Lord. Yeah, this is very important, you know. इसीलिए क्या बोलते हैं, जो लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं उनको हर टाइम स्ट्रगल करना ही पड़ेगा. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. बहुत मेहनत करो, गधे के ऐसे काम करो लक्ष्मी पाने के लिए. पॉकेट में आएगा सैलरी 30th of every month, लास्ट डे के महीने में, और फिर चला जाएगा यहाँ पर. बट आप कृष्णा का सेवा कीजिएगा. यू बी प्लीज लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड लक्ष्मी विल कम आफ्टर यू रनिंग, बिकॉज उनका पोजीशन है भगवान के चरणों के तरफ, है ना. इसीलिए that's the training being given you to all of you in this voice training module, how to serve Lord Krishna. लक्ष्मी का टेंशन ही नहीं है, वो ऐसे आ जाएगी. कभी इंडिया में कोई किसी को देखा है कि क्या बोलते हैं, कोई भिखारी कभी सुसाइड किया है करके? पर अमीर लोग सुसाइड करते हैं, जो सब कुछ उनको, लक्ष्मी तो बहुत है, सुसाइड क्यों करते हैं? फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लाइफ में, even after having money. But when the poor people of the villages and all, they worship the Lord, भगवान का पूजा करते हैं. The devotees, they worship Lord, and see, devotees are always happy, always satisfied. I was hearing in one lecture that IIM Ahmedabad में research हुआ था कि who are the most happiest people in the world. And उन्होंने research किया, अलग अलग groups of people, अलग अलग communities में research किया, and they came to conclusion that the people who worship Lord Krishna,
they are the most happiest. That was the conclusion. So if you worship Lord Krishna, if you serve Lord Krishna, then automatically you will Lakshmi will come at Lakshmi will be there with you, and you will be all satisfied because you will develop love for Krishna in your heart. ठीक है. Coming to question number 14. What did Lord Vishnu say about Bhrigu Muni kicking his chest in connection with Chanchala? Yes. Suman, yes. Actually, Lord Narayana indicates that she might not have been living perpetually by his chest, but because his chest had been touched by the feet of Bhrigumuni, it was now sanctified, and there was no chance that the goddess of fortune would live. And Bhrigumuni, however, could not understand the position of Lord Vishnu, and struck with wonder at the behavior of the Supreme Personality of Godhead. या वेरी नाइस. तो भगवान ने बोला कि लक्ष्मी देवी मेरा छाती इम्प्योर था, पर आपने लात मार के इसको प्योर कर दो, लक्ष्मी देवी मेरे छाती को छोड़ के भी जाएगी नहीं. उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया उनको. लास्ट क्वेश्चन. आफ्टर द डिवाइन स्पीच ऑफ लॉर्ड विष्णु, व्हाट हैपेंड टू भृगु मुनि? यस, नीतीश आप है? This is not there. Okay. Anybody else want to answer? Nitish is there. Okay. Quickly. Yes, sir. Yes. Question number 15 का answer. Because of his gratitude, his voice choked up, and he was able to reply to the words of the Lord. Tears and glided from his eyes and could not say anything. He simply stood silently before the Lord. करेक्ट. उनको अपने गलती का एहसास हो गया. ठीक है. एंड देन भृगु मुनि जब आए फिर से, Yeah. सब थैंक यू नीतीश. देन तब भृगु मुनि जब आए सब फिर से सब सेजस के असेंबली में उनका टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जब वो यहाँ पर आए, तब उन्होंने देखा तो सब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सब ऋषि मुनियों के साथ. और शेयर करने के बाद कंक्लूजन क्या बोला कि देखिए मैं तो ब्रह्मा जी के पास गया था, शिव जी के पास गया था और विष्णु जी के पास गया था. तीनों के टेस्ट के बाद कंक्लूजन में ये आया कि विष्णु ही सबसे ग्रेटेस्ट है. दैट वाज द कंक्लूजन. एंड देन उस पूरे क्या बोलते हैं सम्मेलन में जहाँ पर सब ऋषि मुनि साधु संत और आचार्य लोग थे, वो लोग आए थे. उसमें से कुछ लोग कंफ्यूज भी थे कि भगवान एक्चुअली है कौन, हु इज द ग्रेटेस्ट अमंग ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे बड़े कौन है. तो कंफ्यूजन, दोनों कंफ्यूजन भी दूर हो गया बिकॉज उनको प्रूफ मिल गया कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन है. तो ये दो चीजें वहां पर हुई. और उन्होंने बोला कि ब्रह्मा और महेश इन दोनों को थोड़ा कुछ बोलने से या नहीं बोलने से भी उनको गुस्सा हो गया, एजिटेटेड हो गए वो. पर विष्णु भगवान को ऐसे कुछ नहीं हुआ. ही वाज एबल टू टॉलरेट इट. दैट्स व्हाई लॉर्ड ब्रह्मा इज इन मोड ऑफ पैशन. इज ए क्रिएटर, उन्होंने क्रिएट किया सब कुछ. लॉर्ड विष्णु यानी कि लॉर्ड महेश यानी शिवा जो है, ही इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. ही डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. एंड लॉर्ड विष्णु इज इन द मेंटेनेंस. वो मेंटेन करते हैं. हम लोग बहुत शेड्यूल बनाते हैं कि अभी एग्जाम के लिए 1 महीना बाकी है, फरवरी एक तरह से आपका एग्जाम्स होने वाला है, तो अभी सेकेंड और फर्स्ट ईयर का शेड्यूल बना के रखेंगे. मैं इतना घंटा पढ़ाई करूंगा, इस पढ़ाई करूंगा. ठीक है, वेरी नाइस. इन मोड ऑफ पैशन यू हैव मेड अप अ शेड्यूल लाइक लॉर्ड ब्रह्मा. फिर शेड्यूल फॉलो करते थोड़ी देर के लिए, फिर मन खराब हो गया, यार क्या हो गया, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ, आज ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, चलो आज मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, छोड़ दो, आज पढ़ना ही नहीं मुझे. तो बाहर दोस्तों अड्डे मारने के लिए चले गए. इज मोड ऑफ इग्नोरेंस. ओके, थोड़ा घूम के आते हैं, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा. बट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द मोड ऑफ गुडनेस विच इज कमिंग इन मेंटेनेंस. इसलिए भगवान ने खुद ने वो जिम्मेदारी अपने हाथ में ली. क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इजी है, पर मेंटेन करना ये बहुत डिफिकल्ट है ना. इसलिए भगवान खुद वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए टू मेंटेन दी होल्ड क्रिएशन. एंड दैट्स व्हाई जो भी भगवान के शरणों में आता है, दोज हु कम इन द मोड ऑफ गुडनेस, दे कैन आल्सो मेंटेन व्हाटएवर दे हैव थॉट, दे हैव प्लान टू डू. अदरवाइज यू विल मेक मेनी प्लान्स एंड ऑल योर प्लान्स विल बी फ्लॉप्ड if you don't have the aspect of maintenance, if you don't have the shelter of Lord Vishnu, Lord Krishna. That's what is very important to understand. तो ये
उसमें से teachings था, and then the sages they finally concluded कि Lord Vishnu is the greatest of all, and जो भी शास्त्रों के नियमों को फॉलो करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनका सेवा करते हैं, they will be also coming into the mode of goodness, and they can also be what you say be we can maintain everything very nicely. Okay, तो अभी आपके पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है. ओके, बट आई आगे गिवन 3 मिनट्स ओनली. ठीक है, ज्यादा समय मिलेगा नहीं अभी. ठीक है, क्विकली 5 क्वेश्चन से 3 So मिनट है. I Yes. am leaving. Actually, everyone is calling me from past 10 minutes, so I have to leave. Okay, ठीक है. You understood today's topic, right? Yes, bro. So who is Lord Vishnu is the greatest. That's what we are worshipping. Okay, so I request you also worship nicely. You chant the rounds very sincerely every day. Automatically you will be able to maintain your studies and your schedule. अगर पढ़ाई very easily हो जाएगा. ठीक है. Thank you, Okay, Ashish. bro. Yes, Hare others Krishna. quickly. Anupam and Suman and Nitish. 3 minutes समय है. I'll end after this. अनुपम को आंसर मिल गया क्या सर? Very happy, he's smiling. Yes, 1 minute remaining quickly. This is a training for all of you indirectly. If you do these all courses very nicely, no, from voice, you will be very easily up. You will become a very good character person as well as आपका interview crack करने बहुत आसान हो जाएगा. All this training process. Radheshyam Prabhu is a real genius. बहुत अच्छे से डिजाइन किया है सब कुछ. Okay, time up. First question number 16. What did the sages conclude after hearing from Bhrigu Muni about his whole expedition? Yes. Raise your hands. Yes. Suman. बोले वो. Yeah, bro. After testing Lord Brahma, Lord Shiva, and Lord Vishnu, Bhrigumani returned to the assembly of great sages on the bank of River Saraswati and described his experience. And after hearing him, the great attention in sages conclude that of the predominating deities, Lord Vishnu is certainly the greatest. Yes, very nice. So proof मिल गया अभी शास्त्रों से. Okay, then second question. What type of spiritualist were these sages? What is the difference in their understanding before and after Bhrigu Muni's experience with the 3 prominent deities of the universe? Yes. बोले प्रभु. Okay. Anupam raised his hand first. I'll come to you also, Nitish. Yes, Anupam.
these sages were Brahmavadi sages, and and before means the conclusion means they were just students of Vedas, and they had not yet come to a conclusion before this incident. But after Bhrigu Muni's experience, they came to the conclusion that Vishnu is the supreme personality of Godhead, supreme absolute personality. Yes, bro. Yes, thank you. Then next question number 18. How can we estimate one's greatness? Give example. Yes, Nitish, अभी आप बोलिए. The example is that lambs may be originated by a slight breeze, but the greatest illuminating source, sun, is never moved even the greatest and one greatness has to be estimated by one ability to tolerate pro, provoke Provoking situations. Yes, very nice. situation. Thank you, Nitish. The Correct answer. You know this one I already explained to you, you know, about the story I told you about yes, Alexander and the sage. Remember that? Long back I have told you the story. है ना कि वे अलेक्जेंडर सिकंदर जब यहाँ पर आए थे भारत में एक जायजा लेने के लिए कि आई वांट टू अटैक इंडिया नाउ आई वांट टू कॉन्कर दिस लैंड सो व्हाट शुड बी माय प्लान एंड हाउ टू कॉन्कर एंड देन ही केम अक्रॉस द स्टेज इन द जंगल एक साधु के पास आए वो साधु तपस्या जप कर रहे थे मेडिटेशन कर रहे थे उनको आके पूछा कि जैसे उनके सामने आए साधु ने कुछ किया नहीं उन्हें सिकंदर को देखा अलेक्जेंडर को देखा पर उन्होंने कुछ किया नहीं तो ही गॉट वेरी एंग्री और गुस्से से बोले कि अभी इसे गला काट देंगे और तलवार निकाली उनको मारने के लिए तलवार गले तक लेके आए एंड एट दैट मोमेंट द सेज स्माइल्ड एंड देन अलेक्जेंडर का पूरा Yes, सिकंदर का प्रभु। पूरा दिमाग ये हो गया बताए out थे। of ये है ना कि कैसे क्या वो हंस रहा है मरने के पहले मैंने इतने लोगों को मारा इतना लोगों को लूटा लोग गिड़गिड़ाते हैं मरने के पहले एक लास्ट विश मांगते हैं पर इन्होंने तो हंस रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला कि यू आर अ सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट मेरे नौकर के नौकर हो तुम सिकंदर तो उसको और गुस्सा आया तो एनीबडी न्यू द आंसर व्हाई ही सेड लाइक दैट उसका मीनिंग क्या है yes, प्रभु, yes, प्रभु, हाँ बोलिए yes, प्रभु। क्या है उसका मीनिंग नीतीश क्यों गुस्सा मतलब क्योंकि वो अपना वो समझते थे करेक्ट वो गुस्से को अपना नौकर बना के तो रखे इसीलिए ऊपर गुस्सा करेक्ट बना के रखे ये वो उसको सर्वेंट का सर्वेंट बोला करेक्ट सो व्हेन यू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड जब आप भगवान का मेडिटेशन करेंगे उनका नाम का जाप करेंगे उन्हें चैंट इज होली नेम्स ऑटोमेटिकली यू कैन कंट्रोल योर एंगर आल्सो एंड देन अलेक्जेंडर अंडरस्टूड दैट दिस सेज इज अ वेरी ग्रेट पर्सन तभी उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया है ना so this is one another example we can cite from the scriptures and the next question what should a person aspiring for peace and freedom from fear do yes Suman Yeah. If Lord Brahma and Lord Shiva lost their peaceful attitude upon a slight provocation, how could they maintain the peace and the tranquility of their devotees? As for Lord Vishnu, however, it is settled in Bhagavad Gita that anyone who accepts Lord Vishnu or Krishna as the supreme friend attains the highest perfection of peaceful life. करेक्ट उसके पहले भी एक लाइन था जो आप नहीं मिस किए if one wants actual peace and fear from all the freedom from all the fear he should take shelter of Lord Takes the lotus feet of Lord Vishnu. Huh? yes thank you and then last question yeah this is also very important what did the sages conclude बोले प्रभु yes बोले Anupam, प्रभु yeah. the quickly Anupam
Yes, the sages concluded that if one follows the principles of Vaishnava Dharma, one actually becomes perfect. And but if one follows all religious principles of a particular sect but does not become advanced in understanding the Supreme Personality of Godhead Vishnu, all such labor of love is fruitless. To execute religious principle means to come to the platform of perfect knowledge. करेक्ट या वेरी नाइस परफेक्ट थैंक यू तो देखो इसमें आज हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया ना आई जस्ट कंक्लूड इन 2 minutes नाउ वॉट वी हैव डिस्कस नाउ इसका मेन चीज क्या है कि टू अंडरस्टैंड हु इज द सुप्रीम एंड हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड विष्णु इज सुप्रीम ऑफ ऑल वो सबसे ग्रेटेस्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु सबसे ऊपर है ना ये हम लोगों ने आज समझा और सेकंड है कि अगर आप विष्णु भगवान की आराधना करेंगे इफ यू वर्शिप लॉर्ड विष्णु लक्ष्मी आपके पास हर समय रहेगा कोई चिंता नहीं है आप फियर और आपको डर लगेगा नहीं आप शांत रहेंगे दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यहाँ पर आपको सीखने को मिला है ये बात एंड वन मोर थिंग इज दैट मेंटेन आप कर पाए किसी चीज को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अनुपम आप तो धाम यात्रा करते रहते हैं पर आप आपका 10 माला मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे 10 माला रीजन क्या है हाँ धाम निवास करते चैंटिंग कर सब कुछ करते क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे why are we not able to maintain why are we not able to chant sincerely because we are not able to chant sincerely because unless we hear sincerely जब तक हम हमसे सुनते नहीं हैं गाइडेंस द कथा जो हमारे लेवल के लिए जरूरी है जब तक हम वो नहीं सुनेंगे हमारा चैंटिंग अच्छे से इंप्रूव नहीं होगा हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे और हम लोग कब सुन पाएंगे अच्छे से जब हम भक्तों के संग में रहेंगे बाहर के समय सुन नहीं पाएंगे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज विल बी एबल टू हियर नाइसली हियरिंग फ्रॉम अ गाइड ओके आप कितना भी लेक्चर सुन लीजिए यूट्यूब से बड़े बड़े स्पीकर लेक्चर क्यों ना सुन लीजिए दैट विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू हैव अ गाइड इन योर लाइफ यू कैन नॉट डू भक्ति ऑन योर ओन जब तक भक्तों के संग में नहीं है किसी के अंडर नहीं है किसी गाइडेंस में नहीं है किसी गुरु के अंडर नहीं है तब तक आप भक्ति नहीं कर पाएंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड भक्ति में इन योर स्पिरिचुअल लाइफ अगर इफ यू वांट टू डेवलप नाइसली नो सो आप लोग सुन रहे राइट सुमन नीतीश if you want to develop in your spiritual life very nicely then at least first 7 to 8 years of your life you should be under a guidance of some what you say a very good devotee unless you under their guidance your foundation आपका जो foundation है वो strong नहीं होगा भक्ति में you will drift away slowly and gradually after a few years that is the most important thing so be in guidance and then you see how nicely you can you will be more focused you will be more clear आपको क्या करना है goal कहाँ पर जाना है your academics will be very nice your career will be very good and you will be ultimately happy and satisfied that's what is taught in voice morning for Krishna and whole day for your career and your studies so simple formula पर हमारा माइंड कितना चीटे रहता है हम लोग को सिंपल चीज भी करने को नहीं देता है that's why we are suffering so much so I request you that this syllabus which is made self manager positive thinker all this is up for your level so do what is needed for your level okay so don't miss the classes ये क्लासेस जो है एक डॉक्टर के चेकअप के जैसे हैं आप लोग को डॉक्टर ने डोज दिया है कि ठीक है आप 4 माला जप करो आप 6 माला जप करो आप 8 माला जप करो और आप हर हफ्ते में जब क्लास में आएंगे तो एक डोज के जैसे है डोज का डॉक्टर के चेक करेगा कि ठीक है आपका अभी कैसा सिचुएशन हुआ है बराबर से आपका चेकअप मतलब परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं बराबर से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सो टेक द मेडिसिन वेरी नाइसली एंड कम फॉर रेगुलर चेकअप ठीक है सो विल मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे ठीक है टुमारो संडे वी आर वेरी नाइस पिकनिक आप लोग आए तो अच्छा होता 25th को वेरी नाइस पिकनिक वी आर गोइंग जस्ट नियर बाय यहाँ पर कल्याणी नाम का जगह है कल्याणी वी आर गोइंग ओवर देयर इन कल्याणी वेरी नाइस प्लेस चैतन्य डोबा एंड Shivananda Sen ka Shri Party we are going there so if you would have come it would have very nice but no issues don't miss the get together camp in January 26th a very nice get together camp 26 27 28 3 days in January I hope you all can come Suman and other third years and fourth years you don't have exams right exam to khatam ho gaye you can come for that camp Mayapur okay ठीक है thank you very much I conclude over here. If you have any questions, you can ask now. I have a question. Like here we see
who is the greatest is Vishnu, but my question is like between Krishna and Balaram, between Yeah, Krishna that and Balaram. that Yes. is your next session now. Okay, next session में ये है कि कौन greatest है. Okay, ठीक है, it'll come. I'll answer it. Don't miss next session then. Okay. Okay, okay, bro. Yes. You had any Also, questions, Suman? also, Prabhu, you see, I thought bro, that I I would don't. not be in Kolkata. I thought I would be in Bolpur only, but I have come to Kolkata this time. Today only I came to Kolkata. This was not planned, so I am staying in Kolkata today, You can come to the tomorrow. picnic then. Sunday picnic को आ सकते हैं. 1 day picnic. सुबह जाके शाम को आ जाएंगे. That okay then yes, Prabhu. Then Just near by Kalyani only it is there. so when Kalyani. you will come, you please tell me the schedule. Yeah, Send yeah, me. I'll call you and tell you everything in detail में. ठीक है. Okay, Yeah. Prabhu. Okay, Hare Krishna. Yes, Suman. Your question? Anything? No, bro, I don't. Okay. Thank you for attending. Yes. Nitish, you have any questions? If not, then we end over here. Thank you everyone for coming. See you again next Saturday. Okay. तो आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ. इसमें कुछ क्वेश्चंस है भागवत गीता के. अगर आपके पास किताब रहती तो अच्छा होता. इसमें कुछ क्वेश्चंस है भागवत गीता के. So I will WhatsApp you the homework in your WhatsApp group. ठीक है. वो क्वेश्चन श्लोक करके क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को निकालना है. ठीक है. I'll send you the photos और I will tell सूरज को बोलूंगा फोटो सेंड करने के लिए. सुमन आपके लिए. ठीक है. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.